السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بعد۔ طلباء عزیز، ہم نے اس سے پہلے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ ایسی چیز جو کہ عقد کی مجلس میں نہ ہو، عقد کی مجلس سے غائب ہو، جہاں پر بیع و شرع منعقد ہو رہا ہے وہاں پر وہ چیز نہ ہو، تو ایسے بیع کا حکم کیا ہے؟ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بات پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بیع ما فی رؤیتہ مشقۃ او ضرر، یعنی ایسی چیز کی بیع جس کو دیکھنے میں مشقت ہو یا ضرر ہو، جس چیز کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہو یا کوئی نقصان ہو، جیسے کوئی چیز پیک ہو یا ڈبے میں بند ہو۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جن کو دیکھنے میں کوئی ضرر ہو، نقصان ہو، کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو، جیسے گیس ہے یا آکسیجن ہے یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو، تو ایسی چیزوں کو بغیر دیکھے ہوئے بیچنے کا حکم کیا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَقَدَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُغَيِّبَاتِ اِذَا وُصِفَتْ او عُلِمَتْ أَوْصَافُهَا بِالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ، کہ اسی طرح سے جیسے کہ پہلے اوپر بتایا گیا ہے کہ مغیبات کی بیع بھی جائز ہے، یعنی جس طرح سے مغیبات کی بیع جائز ہے اسی طرح سے ایسی چیزیں جن کو دیکھنے میں مشقت ہو یا ضرر ہو، ایسی چیزوں کی بیع جائز ہے۔ لیکن کب جائز ہے؟ اذا وصفت او علمت اوصافها بالعادة والعرف، جبکہ اس طرح کی چیزوں کا وصف بتا دیا جائے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے، یہ چیز بائع مشتری کو بتا دے، بیچنے والا خریدنے والے کو صحیح سے تفصیل کے ساتھ بتا دے، یا جیسے کہ عام طور پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ چیز کتنے کلو کی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی تفصیلات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی بھی طرح سے بائع اس چیز کی صفت بتا دے، اس چیز کا وصف بتا دے، او علمت اوصافها بالعادت والعرف، یا یہ کہ اس کے اوصاف عادت اور عرف سے معلوم ہو جائیں، خود بخود معلوم ہو کہ یہ چیز ایسی ہی ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص کسی سے بیچنے کے لیے ایسے کچے ناریل خریدے جن کے اندر پانی ہوتا ہے اور پانی ہی پیا جاتا ہے، تو وہ خریدنے والا ان ناریلوں کو کاٹ کر کے نہیں دیکھ سکتا ہے کہ ان کے اندر پانی ہے یا پانی نہیں ہے، کیونکہ کاٹنے میں کیا ہے، ضرر ہے، نقصان ہے۔ وہ پانی اگر ایسے ہی زیادہ دیر تک رکھا رہے تو خراب ہو جائے گا، اسی طرح سے اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ لیکن چونکہ عادت اور عرف سے پتہ ہوتا ہے کہ ناریل کے اندر پانی ہے اور جو پانی ہے وہ صحیح ہے، سڑا ہوا نہیں ہے، لہذا اس چیز کی بیع کا حکم کیا ہے؟ صحیح ہے، درست ہے۔ آگے اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور سے وَذَلِكَ كَالْأَطْعِمَةِ الْمَحْفُوظَةِ، ایسے کھانے کی چیزیں جو کہ محفوظ کر دی گئی ہوں، ڈبوں وغیرہ میں بند کر دی گئی ہوں، پیک کر دی گئی ہوں، یعنی جیسا کہ اسٹاک شدہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پریزرڈ فوڈ کہا جاتا ہے، جیسے بند کھجور کی پیکٹ ہے یا دودھ کی تھیلی ہے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر گوشت بھی ہوتا ہے، بنی بنائی سبزیاں بھی ہوتی ہیں جن کو بنا کر کے پیکٹ میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی رہتی ہے کہ یہ چیز اتنے دنوں تک صحیح رہے گی، خراب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی خریدنے والا اس طرح کی محفوظ خوراک کو، محفوظ کھانے کی چیزوں کو خریدتے وقت یہ چاہے کہ کھول کر کے پہلے دیکھے کہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے، کچھ اور تو نہیں بھرا ہوا ہے، کوئی اور چیز تو نہیں رکھی ہوئی ہے، یا اس کی مہک کیسی ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کوئی شخص اگر ان ڈبوں کو کھول کر کے پہلے دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ دیکھنے کے بعد اگر اسے پسند نہ آئے، وہ خریدنے سے منع کر دے، انکار کر دے، تو ایسی صورت میں وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی، جس سے ضرر لاحق ہوگا، نقصان لاحق ہوگا۔ تو وہی مثال دی ہیں کہ وَذَلِكَ كَالْأَطْعِمَةِ الْمَحْفُوظَةِ، تو اس کی مثال جیسے محفوظ شدہ خوراک ہے، اسٹاک شدہ طعام ہے، وَالْأَدْوِيَةِ الْمُعَبَّأَةِ فِي الْقَوَارِيرِ، المعبعۃ کا معنی کیا ہے؟
अब्बा युअब्बिउ अद्दवाअ वस्सिलअता व नहवहुमा, डब्बों या थैलियों वग़ैरह में बंद करना, पैक करना। तो अल-मुअब्बअतु का माना क्या होगा? पैक शुदा, बंद किया हुआ। तो वल अदवियतुल मुअब्बअतु फिल क़वारीर, इसी तरह से शीशियों और बोतलों में बंद की हुई दवाइयाँ, पैक की हुई दवाइयाँ। तो ऐसी दवाइयों से मुतालिक भी मालूम होता है कि ये दवाइयाँ किस काम की हैं, ये कैसी हैं, कब तक रहेंगी और इनमें क्या चीज़ें मिली हुई हैं। इस तरह की दवाइयों के औसाफ क्या होते हैं मालूम होते हैं और इनको खोल करके देखने में नुकसान भी है। लिहाजा इस तरह की दवाइयों को बेचना भी क्या है, दुरुस्त है, जायज़ है। आगे कह रहे हैं व अनाबीबिल अक्सूजी ने, इसी तरह से ऑक्सीजन के पाइपों को भी बेचा जा सकता है, ऑक्सीजन की नालियों को भी बेच सकते हैं। गरचे के ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इनको भी खोल करके देखने में नुकसान है, ज़रर है। व सफ़ाइहिल बेंज़ीन, सफ़ाइह या सफ़ीहतुन की जमा है जिसका माना है पेट्रोल या तेल का टिन, और बेंज़ीन का माना है पेट्रोल। तो व सफ़ाइहिल बेंज़ीन, और पेट्रोल के टिन, पेट्रोल के कैन। वल गाज़, इसी तरह से गैस के कैन, गैस के टिन। व नहवे दालिका मिम्मा ला युफ्तहु इल्ला इंदल इस्तेमाल, और इसी तरह की और भी दीगर चीज़ें जिन्हें सिर्फ़ उसी वक्त खोला जाता है जबकि उनका इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ़ इस्तेमाल के वक्त ही उनको खोला जाता है और इस्तेमाल से पहले उनको खोल करके नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं खोला जाता है, सबब क्या है? लेमा यतरत्तबु अला फ़त्हिही मिन ज़ररिन औ मशक्क़तिन, क्योंकि इन चीज़ों को खोलने से या तो नुकसान लाहिक होता है या फिर मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वयदखुलु फ़ी हादल बाबे मा ग़ुय्यिबा सिमारुहु फ़ी बातिनिल अर्ज़, कि इस बाब में वो चीज़ें भी शामिल हैं मा ग़ुय्यिबा सिमारुहु फ़ी बातिनिल अर्ज़, जिनके फलों को ज़मीन के अंदर गायब कर दिया गया हो, यानी ऐसे फल, ऐसी सब्ज़ियाँ जो कि ज़मीन के ऊपर ना हो बल्कि ज़मीन के अंदर हो, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, और उन चीज़ों को देखने में किसी एतबार से नुकसान है या ज़रर है। जैसा कि आगे इस तरह की चीज़ों की मिसालें दी जा रही हैं। मिसलुल जज़री, जैसा कि गाजर, वल्लिफ्ती और शलजम, वल बतातिसी और आलू, वल कुलक़ासी और अरवी, वल बसली और प्याज, वमा काना मिन हादल कबीले, और जो भी चीज़ें इस कबील की हों, यानी जितनी भी चीज़ें ऐसी हों जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं होती हैं, जैसा कि लहसुन है, मूली है, चुकंदर है और इसी तरह की और दीगर चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं कि फ़इन्न हादिही ला युमकिनु बैउहा बिइख़राजिल मबीए दफ़अतन वाहिदतन, कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इन्हें सब के सब एक साथ निकाल करके नहीं बेचा जा सकता है, कि खेत में जितना आलू है सब के सब निकाल करके एक साथ बेच दिया जाए, या इसी तरह से शलजम है या मूली है या गाजर है या प्याज है या कोई और चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को निकाल करके एक साथ एक ही टाइम में बेचा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? लेमा फ़ी दालिका मिनल मशक्क़त अला अरबाबिहा, क्योंकि ऐसा करने से इनके मालिकों को नुकसान लाहिक होगा। इसी तरह से वला युमकिनु बैउहा शैअन फ़शैअन, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके भी नहीं बेचा जा सकता है कि इनमें से आज 10 किलो निकाल करके बेच दिए, कल फिर 10 किलो, फिर उसके बाद 10 किलो, ऐसे ही अगर करते रहे तो फिर क्या होगा? लेमा फ़ी दालिका मिनल हरज वल उसरे, क्योंकि इस चीज़ में हरज है, परेशानी है, वल उसरे और तंगी है, परेशानी है, वरुब्बमा अद्दा दालिका इला फसादिल अमवाल और तातीलिहा, और बसा औक़ात ऐसा होता है कि ये माल के ख़राब होने और बेकार होने का बाइस बनता है, सबब बनता है।
इस चीज़ की वजह से माल बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारा माल सड़ जाता है, गल जाता है, बर्बाद हो जाता है। व इन्नमा तुबाउ आदतन बेवासितति तआक़ुद अलल हुक़ूलिल वासिअति अल्लती ला युमकिनु बैउ मा फ़ीहा मिनज़्ज़ुरूइल मुख़य्यबति इल्ला अला हालिहा। क्या कह रहे हैं? व इन्नमा तुबाउ आदतन, और उमूमन ऐसी चीज़ों को बेचा जाता है बेवासितति तआक़ुद अलल हुक़ूलिल वासिअति, आपसी अक़द के वास्ता से, अलल हुक़ूलिल वासिअति, ऐसे वसी खेतों की शक्लों में, अल्लती ला युमकिनु बैउ मा फ़ीहा मिनज़्ज़ुरूइल मुख़य्यबति इल्ला अला हालिहा, जिन खेतों में मौजूद गायब पैदावार को बेचना मुमकिन नहीं है, इल्ला अला हालिहा, मगर उनको उन्हीं की हालत पर। यानी यहाँ पर इस इबारत में ये कहना चाह रहे हैं कि उमूमन ऐसा होता है कि इन जैसी अशिया को वसी खेतों की शक्ल ही में बेचा जाता है, पूरा का पूरा खेत ही बेच दिया जाता है। पूरे खेत में जितना भी आलू होता है, प्याज होता है, या जो भी इस तरह की चीज़ होती है, सबको एक साथ ही बेच दिया जाता है। और ख़रीदार क्या करता है? अपनी सवाबदीद के मुताबिक जैसा उसे अच्छा लगता है उन्हें निकालता रहता है और बेचता रहता है। तो व इदा ज़हरा अन्नल मबीआ यख्तलिफु अन अमसालिही इख्तिलाफन फ़ाहिशन, और जब ख़रीदने वाला उस चीज़ को ख़रीद ले, पूरे खेत में मौजूद तमाम अशिया को एक साथ ख़रीद ले, फिर क्या हो कि ज़हरा अन्नल मबीआ यख्तलिफु अन अमसालिही इख्तिलाफन फ़ाहिशन, उसको ज़ाहिर हो कि मबी यानी जिस चीज़ को उसने ख़रीदा है वो उसके अमसाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने दूसरे खेतों से जो सामान ख़रीदा था वो कैसा था? ठीक ठाक था, अच्छा था। लेकिन इस खेत में क्या है कि इसके सामान बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। आलू हैं तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, प्याज हैं, लहसुन हैं तो वो भी छोटे छोटे हैं, गाजर, मूली, शलजम कैसे हैं? वो भी बहुत बेकार हैं, यानी दूसरे खेतों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे खेतों में सामान तो बड़े छोटे छोटे थे, ख़राब थे, लेकिन इस खेत के सामान बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ बड़े बड़े हैं। लेकिन मालिक ने ये सोच करके कि इस खेत में मौजूद पैदावार भी दूसरे खेतों की तरह से ख़राब होंगे, ये सोच करके खेत के मालिक ने बहुत सस्ते में बेच दिया था। लेकिन बाद में देख रहा है कि इसके सामान बड़े अच्छे हैं, इस खेत की पैदावार बड़ी अच्छी है, जिससे क्या हो रहा है? यूक़िउज़ ज़ररु बिअहदिल मुतआक़िदैनि, जिससे दोनों अक़द करने वालों में से किसी एक को नुकसान लाहिक़ हो रहा हो, ज़रर लाहिक़ हो रहा हो, या तो मुश्तरी को नुकसान हो रहा हो या बाए को नुकसान हो रहा हो, तो इसका हुक्म क्या है? सबतल ख़ियारो, ऐसे सूरत में ख़ियार साबित होगा, इख्तियार साबित होगा। फ़इन शाअ अमज़ाहु व इन शाअ फ़सख़हु, अगर चाहें तो इस बय को जारी रखें या चाहें तो इस बय को फस कर दें, कैंसिल कर दें, दोनों इख्तियार है। और दोनों के लिए इख्तियार है, जो चाहें इस बय को फस कर सकते हैं। कमा फ़ी सूरत मा इदा इश्तरा बैज़न फ़वजदहु फ़ासिदन फ़लहुल ख़ियारो, जैसा कि उस सूरत में है कि अगर किसी ने कोई अंडा ख़रीदा, फ़वजदहु फ़ासिदन, और ख़रीदने के बाद वो अंडा कैसा मिला? फ़ासिद मिला, उसने उस अंडा को ख़राब पाया, वो अंडा ख़राब निकला, तो फिर क्या होगा? फ़लहुल ख़ियारो फ़ी इम्साकिही औ रद्दिही, तो उसके लिए ये इख्तियार होगा कि चाहे तो वो उस अंडा को अपने पास रखे या ये कि उस अंडा को वापस कर दे, दफ़अन लिज़्ज़ररि अन्हु, उससे नुकसान को दूर करने के लिए, नुकसान को ख़त्म करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर क्या है? इख्तियार है, वैसे ही ख़रीदने के बाद सामान अगर बिल्कुल मुखालिफ निकले तो वहाँ पर भी क्या होगा? इख्तियार होगा। चाहे तो उस बय को जारी रखें और चाहे तो उस बय को फस कर दें, रद्द कर दें, कैंसिल कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।